وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تو خیر ہے حضرت یہ جاننا تھا کہ مستورات جماعت کے بارے میں دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے؟ تو دارالعلوم کا فتوے کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ ہے؟ نہیں ابھی نہیں، اس لیے آپ کو فون مطلب دارالعلوم کا کیا فتویٰ ہے؟ دارالعلوم کا فتویٰ ہے مستورات کو جی مروجہ تبلیغی جماعت میں نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ نہیں جانا چاہیے، اور یہی بات مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب کی بھی ہے، نہیں جانا چاہیے۔ جی مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے میں مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس 3 مرتبہ گئے کہ جی مستورات کو جماعت میں جانا چاہیے، انہوں نے منع کر دیا، اس کا جی ثبوت کہیں سے نہیں۔ جی پھر یہ لوگ مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے جی کہ حضرت جانا چاہیے، فائدہ زیادہ، تو انہوں نے کہا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ، اس لیے مستورات کو جماعت میں نہیں جانا چاہیے۔ جی یہ بڑے دو مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے، اور دارالعلوم دیوبند، بنوری ٹاؤن، سہارنپور، ندائے شاہی کی بھائی یہی فتویٰ ہے، نہیں جانا چاہیے۔ جی 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 آپ اگر مطلب نکلے کوئی مثال تو وہ تو پھر مطلب ان دور کا پھر مطلب مخالف ہی ہے۔ اب وہ فتویٰ میں نے بتا دیا، میں نے بتا دیا، مطلب دارالعلوم کے مخالف ہے وہ کون جو نک جائے گا نا۔ اب دارالعلوم کا کام ہے قرآن حدیث کی روشنی میں رہبری کرنا۔ اگرچہ نظام الدین والے جا رہے ہیں، اب جو نظام الدین جائے یا کہیں کے لوگ جائیں، اس سے ہماری مراد نہیں ہے۔ دارالعلوم نے اپنے فتوے میں قرآن کی بھی دلیل دیا ہے اور حدیث کی بھی دلیل دیا ہے، جی تو اب وہ قرآن حدیث کی دلیل کے اعتبار سے انہوں نے بتایا نہیں جانا چاہیے۔ صحیح بات۔ تو اب کسی کوئی اگر جاتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ بھائی دارالعلوم بولو ڈاکٹر صاحب بولو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علماء کی نگرانی میں کام کریں گے، مثال ہاں شورا والے 4 منٹ کے لیے ہاں مثال، تو ایک طرف سے مطلب کہتے ہیں کہ جو ہم مطلب دارالعلوم دیوبند کہے گا ہم وہی کریں گے، ہم اسی کے فتویٰ پر مطلب اسی فتویٰ کو ہم فالو کریں گے۔ جی تو لوگ تو یہی مطلب سمجھ رہے کہ یہ مطلب علماء کو فالو کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف تو جماعتیں نکل رہی ہیں مطلب بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں، یہ دونوں آدمی ایک سکے کے 2 پہلو ہیں۔ مطلب ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند کو فالو کریں گے، دوسری طرف سے یہاں جماعتیں نکالیں گے، بالکل فالو تو نہیں اس کر کا مطلب ہے کہ یہ مطلب علماء کو فالو نہیں کر رہے ہیں، تو اب منمانی چل رہا ہے۔ ایک منٹ رک جائیے آپ، جو باتیں سورہ امارت والے کرتے ہیں جماعت میں نکال کے، وہی بات تو یہ بھی کرتے ہیں، ایک قدم پہ 700 نیکی، 7 لاکھ نیکی، یہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ان فرو صفافہ و ثقالا، یہ سورہ والے بھی کہتے ہیں اور امارت والے بھی کہتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی مطلب وہ تو مطلب نظام الدین والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جائیں گے، مطلب مولانا یوسف صاحب یا مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں بھی جماعتیں نکلتی تھی۔ نہیں، کہاں نکلتی تھی؟ سن لو، جب مولانا الیاس صاحب کو یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ مستورات کو کیوں نکالتے ہو، مطلب مولانا الیاس گمن صاحب بھی اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں، مفتی مسعود یہ طارق مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور مفتی ضرور خان صاحب جو ہمارے پڑوس ملک کا ہے علیہ رحمہ، وہ بھی اپنے مطلب بیانوں میں اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جب مولانا کو یہ اعتراض کیا گیا تو مولانا نے کیا جواب دیا کہ یہ تو پہلے سے نکل چکی تھی مستورات۔ یہ چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ سن لو ہم نے بس صرف ان کا جگہ بدل دیا ہے، یہ چیزیں مولانا الیاس سن لو، اور ہاں آپ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ فائدہ کام ہے نقصان زیادہ ہے، یہ چیز جو میں نے ابھی آپ نے دہرے نہیں یہ بات۔ ایک منٹ رک جائیے، میں نے جو چیز کہی ہے وہ چیز میں میرے ذمہ ہے دکھانا، میں دکھا دوں گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک منٹ رک جائیے، ایک آدمی کی بات پوری ہو جائے پھر آپ کہیے۔ آپ نے جو بات کہی ہے کہ مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ نکلی نہیں تھی، یہ نکل چکی تھی، بس ہم نے ان کا جگہ بدل دیا۔ یہ چیز کہاں پہ لکھی ہے؟ یہ چیز کہاں پہ لکھی ہے؟ حضرت ایک بات سنیے کہ جب مطلب اعتراض کیوں ہوا، پھر اس کا مطلب ہے کہ جماعتیں نکلتی تھی تبھی تو اعتراض ہوا نا۔ یہ چیز کہاں پہ لکھی ہے؟ میں دکھا دوں نا آپ کو۔ کیا مولانا الیاس صاحب نے کہا ہے؟
हाँ अगर नहीं कहा तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब फिर झूठ बोल रहा है, और मुफ्ती तारिक मसूद झूठ बोल रहा है, मुफ्ती जरर अली खान साहब झूठ बोल रहे हैं, जितने भी उलमा इसकी मौलाना तारिक जमील साहब झूठ बोल रहे हैं, ये सब उलमा फिर झूठ झूठ, ये हालांकि ये भी देवबंदी है, ये भी देवबंद से मतलब फारिग है। कह चुके आप, जब कह चुके हो। ये तो हजरत ये तो छोटे किस्म के आलिम नहीं, ये तो मतलब माशाल्लाह बड़े छोटे किस्म के आलिम है, बड़े उलमा में इनका शुमार होता है मौलाना इलियास गुम्मन वगैरह से। आप जब कह चुके हो तो खामोश, तब खामोश हो जाइएगा, मैं इनका जवाब, मैं सबका जवाब दे दूंगा। तो एक तरफ से कि मतलब हकीम साहब कह रहा है कि ये तो मौलाना यूसुफ के जमाने में नहीं था, मौलाना इलियास साहब के तो किसकी बात नहीं जाए? अब आप रुक तो जाइए, आलिम है ही नहीं। आप रुक जाइए, नमाज के बाद इस पर मैं तफसीली बात तो खत्म हो गई। नहीं खत्म नहीं, मैं तफसीली बात इस आजाद नहीं, नमाज के बाद होगी, मैं इस पर आप क्या मतलब तफसीली बात होगी? मतलब वो तो उलमा है, आप तो आलिम भी नहीं हो। मैं आलिम नहीं, मैं अपनी, हाँ, आपने जो बात मौलाना इलियास साहब के मुतालिक कहा, दिखाइए कहाँ कहा है। मतलब मुझसे ये तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब से पूछिए। मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने क्या कहा है? उसने कहा कि उसको जब एतराज हुआ कि मस्तूरात जमातों को मत निकालिए, आप इसको क्यों निकालते, ये बिदअत है, इनके मतलब, तो इसका मतलब है कि मतलब मौलाना इलियास ये क्या कहते हैं उसको, तो एतराज इसीलिए हुआ ना, इसलिए मौलाना इलियास गुम्मन साहब ने से किसी ने कहा कि मौलाना इलियास साहब ने वो जवाब दिया है। अब आप क्या कह रहे थे इलियास गुम्मन साहब के बारे में? मैं क्या कह रहा था, मैंने आपको वीडियो भी दोनों सेंड किया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी। इलियास गुम्मन साहब ने ये कहा था, मौलाना इलियास साहब ने कहा कि मैं निकाला नहीं, निकली है खुद। तो ये बात इलियास गुम्मन साहब ने तो किसने बताया? उस जमाने में तो इलियास गुम्मन साहब थे नहीं थे, तो फिर झूठ बोल रहा है, अपनी बात चला रहा है। कुछ बात पूरी सुन लीजिए, असल में आप दूसरी की बात सुनते रहिए, मैं पॉलिटिकली हुआ। तो इलियास गुम्मन साहब को किसी ने बताया होगा, बताने वालों ने बताया। अच्छा, ये भी मतलब सुने फैल रहा है। ये बात किसी किताब में लिखी है, तो आपको इनसे सवाल करना चाहिए था सर। इनसे, मौलाना इलियास गुम्मन साहब से या मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, मुफ्ती जरर अली साहब खान साहब से। मौलाना इलियास गुम्मन साहब से किसी ने झूठा बताया होगा। अच्छा, फिर एक मिनट रुक जाओ। उसी के बात पर उन्होंने एतमाद करके कहा है। आप समझे नहीं समझे? तो ये गलत बात है ना, गलत बात है। जब मौलाना इलियास, दूसरे की बात सुनने का जरा मादा भी रखो यार। किसके मतलब किस दूसरे का? हम ये कहे, जब मौलाना इलियास साहब ने इस चीज को खुद दारुल में लिखा है कि मौलाना इलियास साहब मौलाना की मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब के पास गए और तीनों मरतबा मना कर दिया। मैं मतलब ये बात अभी आपने फिर मतलब इससे पहले भी आपसे इस बारे में बात हुई है, लेकिन मैं तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब या मुफ्ती तारिक मसूद साहब या मुफ्ती जरर अली खान साहब के इनके बयान के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। मतलब ये तो मतलब कितने लोग इनके सामने ये बात सुन रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे, सुनी बात है, लोगों को सुना रहे हैं। इलियास गुम्मन साहब से गलत बात है ना ये। डॉक्टर साहब सुन ले, ये भी उलमाए देवबंद में से है ना। कौन? ये तो मौलाना इलियास गुम्मन साहब, मुफ्ती जरर अली साहब वगैरह, ये मुफ्ती तारिक मसूद, ये भी उलमाए देवबंद में से है ना। तो उलमाए देवबंद की कौन सी बात मानी जाएगी जो कुरान हदीस के दलील के एतबार से होगी ना? तो ये फिर कुरान और हदीस के खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों को झूठ फैला रहे हैं। ये तीनों नहीं, अब आप रुक जाइए, एक मिनट जरा सा तवक्कुफ कीजिए। दारुल ने जो फतवा दिया है कि ना जाने का, उसमें कुरान और हदीस की दलील दिया है। जिन लोगों ने जाने का फतवा दिया है उन्होंने कुरान हदीस की कौन सी दलील दिया? जी, जिन्होंने जवाज का फतवा दिया है उनके पास क्या दलील है कुरान हदीस की? सही बात, वो तो यही जानेंगे ना, वो तो यही बताएंगे ना। मौलाना इलियास गुम्मन वगैरह ये भी मौलाना इलियास गुम्मन साहब दारुल उलूम देवबंद से सवाल पूछा गया कि तारिक जमील साहब की बात एक मिनट रुक जाइए, दूसरे की बात सुन लीजिए भैया, क्यों नहीं सुनते हो? कि तारिक जमील साहब की बात मानी जाए या मौलवी साद कांधलवी की, तो दारुल ने कहा कि बात मानने का मयार न तारिक जमील है न साद कांधलवी है, जिसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक होगी उसकी मानी जाएगी। सही बात बिल्कुल, बेशक। तो ये जो बात कर रहे हैं, दारुल ने जो अदम जवाज का फतवा दिया है उन्होंने कुरान हदीस की दलील दिया है। जिन्होंने जवाज का फतवा दिया है उनके पास कौन सी दलील है? सही, तो आप इनसे ये सवाल कर लीजिए, आप इन्हीं से सवाल, आपने ये फोन लगाइए, मैं सवाल करता हूँ। किनको?
जिससे आप पूछवाना चाहते हैं, आप अगर सवाल नहीं कर सकते तो फ़ोन लगाइए, मैं फ़ोन कर बात करता हूँ, चाहे वो तारिक मसूद साहब हों और चाहे इलियास गुम्बद साहब हो, मैं उनसे बात करता हूँ। मतलब मैं एक बात, कॉन्फ्रेंसिंग फ़ोन कीजिए आप। नहीं सुन ले बात, मतलब फिर ये मतलब झूठ, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि फिर ये झूठ मतलब झूठ बोल रहे हैं, लोगों में मतलब सुनी सुनाई बातें फैला देखिए रहे कि हैं। एक मिनट यहाँ रुकिए, अगर ये किसी की गलत बात है ना, एक मिनट भैया ज़रा रुक जाओ, ये अगर गलत किसी बात है की ना। ज़ाती बात कुरान हदीस से टकरा छोड़ो, जाएगी तो अच्छा अमल छोड़ो, फिर ज़ाती एक बात मतलब पर सुन होगा सुन या कुरान हदीस पे होगा? सुन ले, आप एक तरफ रखो मौलाना इलियास गुम्बद साहब को, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को छोड़ो। यहाँ जो मतलब शोरा वाले कह रहे हैं, मिसाल यहाँ भी ये मतलब दारुल देवबंद की मतलब ये तो दारुल को फॉलो कर रहे हैं ना, इनके बिल्कुल नहीं मतलब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्यों ये मतलब उलमा को बदनाम कर रहे, ये तो जो उल्टा कौन, उल्टा पर फिर अब उनसे बात ये करो, कहाँ फॉलो कर रहे हो? तो यहाँ निकल रही है इनकी जमात। उनसे कहिए शूरा वालों से कि दारुल उलूम का फतवा है कि मस्तूरात को नहीं ले जाना चाहिए। आप लोग अच्छा क्यों ले जा ये रहे हो? गलत बात है। कहाँ कहाँ दारुल उलूम को फॉलो कर रहे हो? क्यों दारुल उलूम को बदनाम कर रहे हो? मुझे कहो। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात आपने बोली, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ये तो फिर मतलब उलमा को बदनाम कर रहे हैं बदनाम कर रहे हैं? आप उनसे ये पूछिए, दारुल दारुल आप कहते हो कि हम दारुल ये उलूम को ये फॉलो कर रहे ये हैं। दा, ये दारुल उलूम को फॉलो नहीं कर रहे, ये तो अपनी मनमानी पे चल रही है। तो जी, इधर एक तरफ से उम्मत ने ये फैलाया कि हम दारुल देवबंद को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ फॉलो कर रहे हैं? हम उलमा की निगरानी, तो ये कहाँ, कहाँ ये फॉलो थोड़ी कर रहे ये हैं भैया? दारुल है, उलूम ने 2023 में एक नया फतवा आया है है, कि अगर निजामुद्दीन के शराइत के साथ भी जाना चाहें तो नहीं जा सकती। है, अभी 2023 का नया फतवा है। है, हाँ, जी। मैं और दारुल उलूम ने कुरान और हदीस की दलील दिया है कि नहीं जाना चाहिए। तो जी, ये सूरा वाले या मर्द वाले जो निकाल रहे हैं, ये लोग दारुल उलूम को कहाँ मानते हैं? दोनों ये दोनों फिर नहीं मानते ना। नहीं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये ना मतलब उम्मत को धोखा दे रहे हैं। और मैंने बहुत पहले से ऑडियो में कहा कि ये दोनों लोग मस्तूरात की जमात को नहीं रोकेंगे। हम्म हाँ, चाहे दारुल उलूम में उसका बाप कहे, हम्म तब भी नहीं रोकेंगे। तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब मतलब यही है, एक ये साजिश के तहत चल रहा है, बिल्कुल ये उम्मत को धोखा दे रहे हैं। धोखा दे रहे हैं, एक साजिश। बिल्कुल दोनों चलो, वो तो दोनों मतलब दोनों उनके पास अपनी दलाइल है, जो मतलब निजामुद्दीन के तहत काम कर रहे हैं ना, उनके पास अपने दलाइल है, क्या हयात दलाल? साहब वगैरह के, उनके पास अपनी दलाइल है दलाल बताइए। ना, मतलब उनके पास है दलाइल, उनके पास बिल्कुल दलाइल ये है नहीं, कि देखो हमसे गलत जो बात मत करो। उनके पास दलाइल है तो दलाल पेश करो हमारे पास। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से हम हर एक मतलब जो काम कर रहे हैं शरीयत के मुताबिक काम अरे कर रहे हैं, भैया, वो थोड़ी दलाल शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं। उनके पास दलाल तो पेश करो, मैं मस्तूरात को निकाल रहे हजरत, हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं देखो, उनकी बात गड़बड़ कर मत रहा हूँ। करो, गड़बड़ ना मत ना करो ना, ये गड़बड़ नहीं, तुम गड़बड़ तुम लोग कर रहे हो। हम एक क्या तरफ कर से रहे हैं? उम्मत में ये फैला रहे हो धोखा कि हम अरे देवबंद मैं को कहाँ फॉलो कह कर रहा रहे हूँ, हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ? तुम कहते हो कि निजामुद्दीन वालों के पास दलाल है, दलाल लाओ। है ना, है जब दलाइल है सीरत के साथ से काम झूठ कर बोल रहे हैं, वो रहे हो, थोड़ी बोला बिल्कुल ना 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 100% ना झूठ बोल रहे ना हो, नहीं झूठे नहीं आदमी नहीं तुम हो। नहीं नहीं नहीं, तुम झूठे तो झूठे तुम आदमी लोग हो, अगर तुम झूठे आदमी हो, अगर दलाल हो तो लाओ। ना ना ना, जो झूठे एक तरफ आदमी से हो तुम। मतलब क्या, नहीं 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 नहीं, ये तुम कसम से झूठे आदमी हो, ये गलत पक्के बात है। मक्कार हो, नहीं पक्के डॉक्टर साहब, ये मक्कार गलत हो बात और है। झूठे आदमी हो। डॉक्टर साहब, ये गलत अगर बात है। निजामुद्दीन के पास दलाल है तो पेश करो। डॉक्टर साहब, ये गलत बात आप बोल रहे हैं, झूठे ये गलत, मक्कार आदमी हो अल्लाह तुम। की कसम आप उम्मत में धोखा फैला रहे हो, झूठ मैं कहाँ अपने धोखा देता हूँ? मन मैं गलत कहाँ बेबुनियादी बातें फैला कर मैं लोगों कहाँ धोखा उम्मत में देता धोखा हूँ? दे तुम रहे हो कहते हो कि उनके पास दलाइल हैं तो दलाइल पेश करो। ना। छोड़ो, हमारे पास दलाली है, हैं? दलाइल है, लेकिन कर रहा झूठे हूँ और मक्कार हो, क्यामत तक तुम कोई ना ना दलाल ना नहीं ना, पेश कर झूठे सकते तुम हो। हो, झूठे तुम है, ये एक तरफ से देखो, उम्मत ये में धोखा उम्मत को फैलाया झूठा और मक्कार, ये सादियानी ना। आदमी है, ये नहीं 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 उम्मत को धोखा दे रहा है, झूठा और मक्कार आदमी है। अगर इसके पास दलाइल है तो पेश करे। नहीं नहीं, दारुल उलूम झूठा तो वो देवबंद ने कुरान और हदीस की दलील दिया है नहीं जाना चाहिए, मैं और यही बात बात बिन नौरी टाउन ने कुरान हदीस की दलील डॉक्टर दिया साहब नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बात इस को मक्कार के पास अगर दलाइल है तो ये मक्कार दलाइल को पेश करे। अरे मक्कारी तो तुम फैला रहे हो, तो अच्छा, धोखा क्या तुम दे मक्कारी रहे हो, फैला रहा उम्मत हूँ को मैं? धोखा तुम लोगों ने दिया। अरे यहाँ एक तरफ तो मैंने क्या एक तो मक्कारी फैलाया है? एक तो उम्मत में कह रहे, उम्मत को कहा कि हम उलमा को फॉलो करेंगे, हम जी, दूसरी मैंने तरफ कहा यहाँ है। से जमातें निकलती है, ये अरे तो मैंने कहा सरासर है, झूठ फैला रहे हो, मैंने कहा मकारी है, फैला रहे हो। मैंने कहा है, नहीं मैं तो नहीं नहीं दोनों को नहीं, झूठ, रिजेक्ट करता हूँ। कसम से झूठ बोल रहे हो, इसका जवाब देना कौन? पड़ेगा अल्लाह की कसम। मैंने कहा है कि वो किसे? लोग दरूल के मुताबिक चल रहे, मतलब कहा दोनों मक्कार हैं। हैं? मैंने कहा माशाल्लाह, है कि वो लोग शूरा वाले उलमा की बातें तीन चल रही है, मैंने कहा है। दोनों फिरके से मकार है ना।
दोनों फिरके फिर मकार है, ये दोनों मक्कार तो ही है, दोनों फिरके फिर मकार है ना। कई मक्कार है। दोनों दारुल उलूम ने मना किया निजामुद्दीन है वाले कि भी और वो वाले मस्तूरात भी। की जमात को नहीं ले जाना चाहिए, और नहीं ले दारुल जाना उलूम ने चाहिए। कुरान हदीस की दलील दिया है। डॉक्टर साहब सुन लो बात, जब ठीक है, मैं दोनों आपकी नहीं बात ले की जा तारीफ कर रहे रहा हैं हूँ तो ना, दोनों मक्कार हैं कि नहीं है? दोनों मकार है ना, दोनों तो मक्कार। उनको मकारी से रोकना चाहिए ना। वो तो मतलब कि अपने अरे आप भाई तुम अपने आप पहले को क्या, मक्कारी से रुको, हम तो दोनों कहते हैं। तुम कहते हो उनके पास दलील है तो लाओ दलील, उनके पास दलाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। लाओ उनके दलाल। पास हमारे निजामुद्दीन वाले की जो भी काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरत के मुताबिक काम कर, वो थोड़ी हाँ वहाँ छोटी सीरत, वहाँ इसीलिए मौली वो साहब थोड़ी पर वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। मौली साहब पर दारुल उलूम ने क्यों फतवा लगाया? क्या फतवा लगा? ये तो आप झूठ दारुल उनको बदनाम कर रहे हो आप। बदनाम कर रहे हैं। नहीं 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 जो नहीं, ये झूठ मत दारुल बोलो, ये बदनाम कर रहे उलूम हो आप। आज भी मौजूद है, उससे पूछ नहीं लो तो सुन फतवा लो लगा सुनिए कि नहीं लगा हजरत, है। हजरत जो ये ना मुफ्ती अरशद नदवी साहब, उनसे भी बात हुई, वो कहते हैं ये शोरा वाले झूठ बोल रहे हैं, अरे इन्होंने बदनाम किया दारुल देवबंद को। मैं सूरा की हिमायत कर रहा हूँ, मुझसे बात कर रहे हो? हैं? जो सूरा की हिमायत करे उससे बात करो। कसम से तुम देवबंद को बदनाम कर रहे हो। देवबंद को तुम दारुल देवबंद बदनाम को कर रहे बदनाम हो। किया तुम लोग लोगों ने। कहते हो दारुल उलूम देवबंद ने पैसा लेके फतवा हाँ, दिया है। एक तरफ से कहते हो कि मसला का जब निकलना मतलब मना है, दूसरी तरफ से यहाँ मना है। निकालते हो, तो ये क्या, ये थोड़ी देर दारुल ये देवबंद को फॉलो कर रहे हो। मौलाना यूसुफ कांदलवी साहब ने हयातुस सहाबा जिल्द अव्वल सफा नंबर 644 पर लिखा नहीं निकलना चाहिए। क्या देख नहीं लो, निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। तो फिर यहाँ क्यों नहीं करते हो? ये इनको क्या रोको ना पहले। कौन? हयातुस ये सहाबा जिल्द अव्वल सफा नंबर 644, औरतों को हेडिंग है, औरतों को जिहाद में जाने की ममानियत। ये मौलाना यूसुफ साहब अपने हयातुस सहाबा में लिखी है, तुम लोग किसकी बात फॉलो करते हो? ठीक है, मैं मैं आपकी बात मान रहा हूँ हजरत, डॉक्टर साहब मैं आपकी बात, लेकिन जो आप यहाँ निकल रहे, यहाँ जो निकलती है ना जमातें, मस्तूरा जमातें निकलती, हाँ। तो मतलब ये उलमाओं को फॉलो करने वाले, देवबंद को कौन कौन उलमा को फॉलो करता है? उलमा को कौन फॉलो करता है? शुरा वाले बिल्कुल नहीं फॉलो करते। हैं? अगर फॉलो करते तो क्यों निकालते? तो क्यों, तो फिर ये मतलब ये क्यों निकालते? ये तो फिर झूठे हैं ना, फिर ये उम्मत में भाई उम्मत जो को झूठ धोखा दे बोल रहे रहे हैं। हो, अगर उलमा को फॉलो कर रहे हैं तो नहीं निकालना चाहिए, और निकाल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ बोल रहे हैं ना, फिर पहले उनको रोको ना। अच्छा तुम कहते हो कि वो निजामुद्दीन वालों के पास दलाल को पेश करो खुदा के वास्ते। दलाल तो उलमा, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी मतलब दलाल के बगैर चलेंगे, थोड़ी ऐसी तो पेश करो, तो पेश करो। ये कसम से आप लोगों को उम्मत को धोखा अरे दे रहे भैया हैं। तो पेश करो दलाइल ना। देखो ये मक्कार आदमी है, क्या मत तक दलाइल नहीं पेश कर सकता है। दारुल उलूम देवबंद ने कुरान और हदीस से दलील दिया नहीं जाना चाहिए, और ये मक्कार आदमी ये कहता है कि निजामुद्दीन के पास दलाइल है, बिल्कुल दलाइल नहीं है। मौलाना साद कांधलवी पर दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, और ये कहता है कि फतवा नहीं है। अभी भोपाल के इज्तिमा में इन्हें मौलाना साद ने झूठ बोला, उस पर मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने पकड़ की है। ये कहते हैं अल्लाह के हाथ में हिदायत होती तो अल्लाह के हाथ में हिदायत होती तो नबियों को भेजते। ये कहते हैं कब्र में 3 सवाल होगा, ईमान, अमाल, माशरा का। हुजूर ने कहा था रब का सवाल होगा, दीन का सवाल होगा, मेरे बारे में सवाल होगा। इस सवाल को मौलवी साद ने बदल दिया। तो ऐसा मौलवी साद के मानने वाले हैं। अभी तबलीगियों से यानी साद वालों से कब्र में साद वाला सवाल होगा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सवाल होगा। इनसे पूछो ये साज के उम्मती हैं या हुजूर की उम्मती है, जरा से इसकी वजाहत करो। जी साहब जी मैंने आपको कुछ हवाले डाल दिया व्हाट्सएप पर। कौन सवाल है? आप उनका मुताला कीजिए। कौन सा वाला है? किसका हवाला? आप देखिए ना, व्हाट्सएप खोलिए, आप व्हाट्सएप पे देखिए किसका हवाला है? मस्तूरात को जमात में जाने वाला तमाम जो भी उलमाए किराम है, मतलब जामिया बिनूरी टाउन वगैरह वगैरह सब, मतलब उन्होंने फतवा दिया। बिनूरी टाउन का फतवा हमने भेज दिया, उसमें कुरान हदीस की दलील कोई नहीं है। उसमें कुरान और हदीस की दलील नहीं है। तो आप तो कह रहे थे कि उन्होंने कल कह रहे थे कि उन्होंने मतलब बिनूरी टाउन वालों ने जब किसी आदमी की जाती राय कुरान हदीस से टकराएगी तो उसकी जाती राय पर अमल होगा या कुरान हदीस पे होगा? आप उनसे फिर बात कर लीजिए, आप उनसे मशवरा हमने आपसे सवाल पूछा है, जब किसी की जाती राय, शेख अबू हनीफा ने कहा है मेरी बात अगर कुरान हदीस से टकरा जाएगी तो मेरी बात को दीवार पे मार देना। देखो कल किसी की जाती राय कुरान हदीस की राय से टकराएगी, अमल किस पे होगा? उसकी जाती राय पे या कुरान हदीस पे? वो भी मतलब कुरान हदीस है, वो थोड़ी अपनी मतलब की बात कर देंगे। तो कुरान हदीस का हवाला कहाँ है? एक फतवा निकालो जिसमें कुरान हदीस का हवाला हो। आप पूरे मैं एक जिसमें आप फतवा डाले हैं
एक फतवा निकालो, उसमें कुरान हदीस का हवाला दिखाओ। इसमें फतवा उलमा का भी फतवा है ना, कितने मतलब उलमा ने इसको उलमा गलत का जो बता दिया फतवा है उसके जहन में वो बात नहीं पहुंची होगी। जब ना, जब वो तो एक जो आपने फतवा डाला है, एक भी फतवा निकालो जिसमें कुरान हदीस का हवाला हो। बस सिर्फ टांडा एक के भी मतलब एक टांडा भी के एक भी पास वो क्या एक है, भी ये फतवा बात निकालो बेकार है। जिसमें कुरान हदीस का हवाला हो। एक क्या भी बात जो है, क्या करते हो? एक भी फतवा डालो जिसमें कुरान हदीस का हवाला। अच्छा, किसका फतवा पढ़ूं? जो तुम्हारे नजदीक सबसे मजबूत हो, तो उस फतवे में पढ़ के उस पर बात करो। जो 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 मैंने फतवा तुम्हारे डाल दिया, नजदीक सबसे आप मजबूत इसका फतवा हो, उस फतवे के निकाल के पढ़ के फिर बहस करो। ये जो तबलीग बिल यकीन कायरनबत ये किताब है, मैं आप इसका पूरा मुताला कीजिए। मैं अबू उम्मीद है बकर कि अल्लाह ताला आपकी बात, मैं आपकी अबू ज़िंदगी में हक बकर बात डालेगा। हैदराबादी से बात कर चुका हूँ, जिसने किताब लिखी है। हैं? अबू बकर हैदराबादी से मैं बात कर चुका हूँ, जिसने किताब लिखी है। ये उसने नहीं लिखी है, ये इसका वो नहीं ये कहाँ की लिखी है? मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद जरनोश है ये कहाँ के हैं? ये पता नहीं, इस पे लिखा नहीं वो कहाँ का अच्छा, है। लिखा नहीं। अच्छा, तुम्हारे नजदीक जो सबसे मजबूत फतवा हो, उस पर मैं बात पढ़ता हूँ, उस पर बात करो। कौन फतवा तुम्हारे नजदीक? जितना फतवा भेजा है, तुम्हारे नजदीक सबसे मजबूत कौन है? अभी तक मैं पूछ रहा हूँ, जितने फतवे भेजे हैं तुम्हारे नजदीक सबसे मजबूत फतवा किसका है? मैं उस पर पढ़ के फिर बात करता हूँ। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारे नजदीक जो सबसे मजबूत फतवा है उसको बताओ, उसको पढ़ के मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, आपको क्या बात कराऊंगा? आप खुद से बात कर लीजिए। आप तो किससे है ना? भेजा तुमने, मैं तुमसे बात करूंगा, मुझसे करूंगा ना? उससे बात मतलब जिसने मुझे भेजा, मैंने भी नहीं। मैं तुम्हारे नजदीक जो मजबूत फतवा हो उसको बताओ, उसको मैं पढ़ के उससे तुमसे बात करता हूँ। बताओ। आपने कल दिया ना हवाला, ये बिनौरी टाउन का, जामिया बिनौरी टाउन कराची का, उनका फतवा भी पढ़ो ना। आप क्या है? अरे भाई, आप बिनौरी टाउन पर बहस करेंगे या दूसरे फतवे पर, जिस पर बहस करना हो? कल तो कह रहे तो बिनौरी अरे टाउन, भाई, जिस फतवे पर तुमको बहस करना हो उसका नाम बताओ, उसको पढ़ के मैं तुमसे बात करता हूँ। आप किसी मतलब साबित कदम नहीं है किसी बात पर? क्या आप किसी बात पर साबित कदम नहीं रहे? कल तो कह रहे थे दारुल देवबंद का मैंने भेजा है। दारुल देवबंद में कुरान हदीस का हवाला दिया है, उस पर बात करो। दारुल ने कुरान हदीस का हवाला दिया है, उस पर बात करो। ये जो दारुल हक्कानिया देवबंद है ना, हाँ, हक्कानिया दारुल हक्कानिया देवबंद में कहाँ है? ये कहाँ है फिर? ये क्या? मैं दारुल देवबंद का भेजा हूँ। आप इसको पढ़ेंगे ना, दारुल हक्कानिया देवबंद सानी अकोला खटक, अकोला का है ना? अच्छा, ये फतवा पढ़ो ना। अच्छा, इस फतवे पे पढ़ के मैं तुमसे बात करता हूँ। चलो, आप पढ़ लो। मैं इसको क्या बात करोगे? नहीं, बेवकूफ आदमी हो। हमने जो फतवा भेजा है, मुझसे उस पर बात करो। सुन लो, मुझसे क्या बात करोगे? आपके सामने मैंने सबको डाल दिया, आप क्या बात करोगे? सब फर्जी है, तुमने सब फर्जी डाला अगर बात नहीं करते हो। चलो, आप फिर भी तुम फर्जी डाले हो। दारुल अकोला के तुम बात करते हो, तो हम दारुल अकोला की ही पढ़ के बात करता हूँ। तैयार क्यों नहीं होते हो? आप उम्मत को धोखा दे रहे हो। आप ये तो पता बाद में चलेगा। तुम जिस फतवे को भेजो हो, जिसको मजबूत समझते हो, उस फतवे और मुझसे बात कर लो। तुम फतवे की व्याख्या गलत कर रहे हो। बदनाम कर रहे हैं आप लोगों ने। तुम फतवे की व्याख्या गलत कर रहे हो। दारुल अकोला की मैं पढ़ के तुमसे फोन करता हूँ। जो निजाम